नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब। पीएम मोदी आज विपक्ष पर करेंगे पलटवार। राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी कल जमकर निशाना साधा था। कल लोकसभा में उन्होंने अपनी बात रखी थी और आज दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे। मोदी ने 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए लोकसभा में राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने शेर शायरी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने का सिलसिला यही नहीं रुका, वो आज राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जवाब। Up to 7 lakhs, we are not going to charge you any income tax. Honorable member or Sir, question. Sir, question is coming, sir. So I am asking, can you consider giving subsidy for LPG at a much better rate for these BPL families, where it can be given at probably 200 rupees per cylinder for the BPL families, and maybe at a higher rate for higher income Okay, groups. Mantri ji. Thank you. Honorable Speaker, sir, I want to, with your permission, draw the attention of the honorable member to the fact that it was precisely because the capacity to pay for families which are termed as BPL or below poverty line that the Ujjwala scheme was introduced. The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3 cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. And the interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250 per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now, if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में. Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें. एक बात सुन लें, प्लीज बैठें. प्लीज बैठे मंत्री. कोई भी माननीय मंत्रीगण नीचे बैठे कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो आप उसका जवाब मत दिया करें.
ये लाइन आपको कही दे दिया, लेकिन आप उन पर बहस करना चाहते हैं। उनसे तो सर बहस करना, मैं कौन होता हूं बहस से, इतने विद्वान हैं, हाँ, लेकिन आप चर्चा मत करो। हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैं जिनको अलाउ करूं उनका जवाब दो आप। सर, आई वांट टू कंक्लूड दिस दैट एट द एंड ऑफ द डे सर, at a time when the Honorable Prime Minister was providing 3 free meals, dry rations, to a very large segment of our population, even at that stage, we did not allow the price of domestic LPG to go up. Now, at the end of the day, that 200 rupees subsidy, what is a subsidy? It is taxpayers' money. And as the Honorable Member says, the ones who are most vulnerable, we are always ready. Left to this House and the Honorable Prime Minister, it would be ideal if the international or the Saudi contract price could come down from 750 further down. It would enable domestic LPG to be sold at even more economical rates. So I wish to submit this in response to what the Honorable MP has said, and I always stand ready to be able to, I would also be able to provide further details on this. Thank you, sir. और इस वक्त सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने जारी किया है 3 लाइन का व्हिप। लोकसभा सांसदों के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। 13 फरवरी तक सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। और त्रिपुरा दौरे पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अरे हम ही बुला तो लाया। तो देखिए, त्रिपुरा दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुरुवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का देखिए घोषणा पत्र भी जारी होना है। एक और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। मोदी सरकार ने लोगों में डर पैदा किया है। कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए लड़ेगी। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बिना नाम लिए कल इशारों में बहुत कुछ कहा, विपक्ष पर निशाना साधा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर पलटवार किया कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए लड़ेगी, ये कहा गया कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। करके उन्होंने टाल दिया और ये हमेशा ये कहते हैं, आज नहीं कि कांग्रेस के बारे में ये कहते ही आ रहे हैं सालों से, एक दिन की बात नहीं है। और मोदी जी की हमेशा ये रहती कि इशू को डाइवर्ट करना, इधर उधर की बात करके उन्होंने टाल दिया। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी दरअसल न्याय के लिए लड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस न्याय के लिए लड़ेगी। मोदी सरकार ने लोगों में एक डर पैदा कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की पहली बैठक होनी है। 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक होनी है।
बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बैठक में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु में बैठक होनी है जहां पर ब्लू इकोनॉमी को लेकर चर्चा की जानी है। पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की यह पहली बैठक आज से, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने पर भी इसमें चर्चा की जानी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय में सचिव लीना नंदन करेंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां पर महिला कांग्रेस आज आक्रोश रैली करने वाली है। जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किया जाना है। थोड़ी ही देर में ये रैली निकाली जाएगी। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आज करने वाली है महिला कांग्रेस। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियां महिला कांग्रेस की ओर से की गई हैं। अब से थोड़ी देर में रैली की शुरुआत होनी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है। आज आक्रोश रैली कर रही है दिल्ली महिला कांग्रेस। हालांकि इसमें देश भर के कार्यकर्ता जो हैं वो जुटने वाले हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से रैली होनी थी, बस थोड़ी देर का इंतजार और फिर इस रैली की शुरुआत। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। उधर पटना में बदमाशों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को बदमाशों ने यहां पर गोली मार दी। पटना से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मार दी गई है। महिला से दरअसल चेन स्नैचिंग की कोशिश यहां पर की जा रही थी और इस दौरान बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा के दावे करने वाली नीतीश सरकार, जहां पर फिलहाल आप देखिए कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर अब संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने की बात कही है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। यहां पर सड़क पार कर रहे लोगों को रौंद दिया गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां पर कार के रजिस्ट्रेशन नंबर पर बस को भी चलाने का मामला सामने आया है। कार मालिक की शिकायत के बाद आरटीओ ने बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस और परिवहन विभाग मामले की जांच में जुट गया है। आरटीओ ने बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल ये कार का नंबर प्लेट है और इस नंबर प्लेट की आड़ में ही बस चलाई जा रही है, स्कूल बस। इस मामले की शिकायत की गई है।
इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर यह सुनवाई होनी है। सारण जिले में जहरीली शराब ने दरअसल कई लोगों की जान ली थी। जहरीली शराब पीने से करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। बिहार शराब कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बिहार के सारण जिले में हुए शराब कांड की जांच एसआईटी से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि सारण में जहरीली शराब के सेवन से करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। जहरीली शराब कांड के मामले में देखिए सुनवाई होनी है। सारण का मामला आपको याद होगा, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था क्योंकि जहरीली शराब पीने से मौत जिस राज्य में हुई वहां पर दरअसल दावा शराबबंदी का किया जाता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की जो संलिप्तता है वो भी सवालों के घेर में आई। एसआईटी जांच संबंधी याचिका पर भी देखिए सुनवाई होनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बूस्ट का वादा किया और इसे लेकर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। लखनऊ में 10 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय समिट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में शानदार तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर देखिए हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी की लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, ये कहावत अब पुरानी पड़ने जा रही है। ये नजारा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। एक बहुत बड़े आयोजन क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होगा। 2 करोड़ नौकरियों की यहां पर भरमार होगी। जिस तरीके से निवेश की बात की जा रही है, 25 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, बताया जा रहा है कि उसके एमओयू साइन हो चुके हैं। 22 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसी हैं जिसके एमओयू साइन कर दिए गए हैं। बाकी और भी लोग हैं जो लगातार इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से संपर्क कर रहे हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो सामने है उसके लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है। आप भी देखिए, ये वो पंडाल है जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से, जो आपको हरे रंग का इस समय एक स्क्रीन सी दिखाई दे रही है, लंबा चौड़ा एक डिस्टेंस है, करीब आधा पौन किलोमीटर का, जो अगर हम चलना शुरू करें इस जगह पर तो शायद पहुंचते पहुंचते मेरी बात खत्म हो जाए, लेकिन ये रास्ता नहीं खत्म होगा। कुछ इसी राह पर निकल चला है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के इस पंडाल से आप तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे और यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में वो निवेश करेंगे। विदेशियों की जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी बनी है वो डेटा सेंटर को लेकर के है। इसके बाद लॉजिस्टिक पार्क, फिल्म सिटी, हेल्थ केयर, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, डिफेंस सेक्टर, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर निवेश को लेकर के व्यापक एमओयू साइन हुए हैं। अलग अलग कंपनियों से साइन हुए हैं, अलग अलग देशों के कंपनियों से साइन हुए हैं। और अब वो मौका आने वाला है जब ये सारी चीजें धरातल पर उतरती हुई दिखाई देंगी। जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश आएगा, इतने सारे दुनिया के लोग आएंगे, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नौकरियों की भरमार होगी। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा,
करीब 2 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। अगर सरकार की गति लगातार इसी तरह से बनी रहती है तो यकीन मानिए कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश को एक नई दिशा दिखा रहा होगा। ये दोनों चेहरे मिलकर के देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हैं। उत्तम निवेश उत्तर प्रदेश, नए भारत का ग्रोथ इंजन। इस ब्रह्म वाक्य के साथ, इस नारे के साथ, इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ तत्पर हो चुका है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो मैदान में 31 सत्रों में होगा। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि देश के बड़े उद्योगपति यानी अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, इनके साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में कारोबार करने वाले तमाम उद्यमी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने पहुंच ही रहे हैं। साथ साथ दुनिया भर से बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद करीब 2:30 बजे उत्तर प्रदेश डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड टूरिज्म सत्र का कार्यक्रम होगा। जो उद्घाटन सत्र है वो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का रहेगा। इसके बाद शाम को 4:30 बजे ओडीओपी और खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं, इस बात को लेकर के सत्र चलेगा। तो कुल मिलाकर के जो उद्घाटन सत्र है उसके लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।